students. Today I will be talking about last group of P block, that is group 18, that is also termed as 8th A. 8th A subgroup और जीरो ग्रुप. ये कंसेप्ट ध्यान रखिए. 8th A BC को कहते हैं और 0 BC को कहते हैं. This group contain helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. These 6 elements are situated or placed in group 18. Atomic number of helium is 2, neon 10, argon 18, krypton 36, xenon 54, and radon 86. All of you know well that the general electronic configuration of group 18 are N_S2 Np6. General electronic configuration is Ns2 Np6. Due to such fact, these elements are inactive in nature except helium, but you can say that this electronic configuration is applicable for all the elements except helium, because helium has only 2 electrons in outermost shell. General electronic configuration of group 18 elements, that is group 0 elements, is Ns2 Np6 except helium, because helium has only 2 electrons in its outermost shell. So only Ns2 electronic configuration of helium is expressed. 1s2, that is 1s2. First element of this group is helium. All the elements taking place in chemical reaction to obtain general electronic configuration like their nearest inert gas. जो हीलियम के नज़दीक के एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन या लिथियम, वो केमिकल रिएक्शन में इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं कि वो हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सके. जो नियॉन के नियरेस्ट है वो सबसे आउटर मोस्ट सेल में S2 और Np6, उनसे बाहर के सेल में S2 और P6 लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ये कंसेप्ट आपको बहुत बार बताया जा चुका है. आज हम इनकी पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. अगर हम बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बात करें इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी की. आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम सभी इसकी डेफिनेशन से वेल नोन है. The energy required to pull an electron from any isolated gaseous atom is called as ionization enthalpy. Ionization enthalpy of helium, neon, argon, krypton, xenon and radon are comparatively very high to other elements present in left of them, because their outermost shell have inert electronic configuration, that is fulfilled orbitals are present. So pulling of electron in such condition requires sufficient amount of energy, resulting ionization enthalpy of
इनर्ट गैसेज इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। इनका जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इनका इनकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऑर्बिटल्स में है वो कंप्लीटली फील्ड है आउटर मोशन में कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से इनका एक भी इलेक्ट्रॉन खींचना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए सफिशिएंट अमाउंट एनर्जी लगती है एक भी इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। रिजल्ट ये होता है कि इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत अधिक होता है। एक लाइन हर जगह एप्लीकेबल है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ionization enthalpy decreases respectively, that is also applicable in this group also। ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इनमें नहीं होती, ये क्योंकि ऑलरेडी इनर्ट है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, इसीलिए ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को एक्सप्रेस नहीं करते और इसीलिए कहा जाता है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल मतलब कि जिसकी गणना ना की जाए, सो दैट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज जीरो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आप आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम में डालते हैं, जितनी एनर्जी रिलीज होती है या रिक्वायर होती है, सच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देयर इज नो नीड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, सो if you want to add an electron in any isolated gaseous system of inert gas, they are already gases and they are already in the isolated form, because they do not take place in chemical reaction by one another, so lives alone. So called inert gases are lazy gases because they have no tendency to take place in chemical reaction with other metals except few one. Only xenon takes place in chemical reaction. तो इस प्रकार से बेटा आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आपने देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंडीशन समझ लिया, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात आपने किया, और ये जमी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप shows by their variation just like your previous groups। फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। कोई परेशानी तो नहीं? तो इस प्रकार से आप इन प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज ठीक उसी प्रकार से चलती हैं जैसे कि सारे ग्रुपों में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। Physical properties of inert gases or noble gases। All the inert gases are already पहले से बोल दिया गया ना, inert gases। All the elements of this group are in gaseous state। Clear? All the elements of this group are in gaseous state। सभी जितने भी हैं वो gaseous state में होते हैं, और ये noble gases इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते। They are colorless, odorless and tasteless in nature। All are colorless, tasteless and odorless। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। सभी कैसे हैं? न कोई गंध है, न रंग है, और ना ही कोई स्वाद होता है। कॉमन चीजें हो गई, समझ में आ गया?
बहुत कम, थोड़ी सी, बहुत अल्प मात्रा में पानी में घुलनशील होती हैं, स्पायरेगली सॉल्युबल इन वाटर, वेरी लो एमपी एंड बीपी, बिकॉज दे ओनली their interaction between elements is very less, that is about zero. Clear? So MP and BP is comparatively very low. क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनर्ट गैसेस की MP BP बहुत कम होती है, क्यों? Because they are inert in nature, so do not take place in chemical reaction, resulting always lives in monoatomic form. Monoatomic form मतलब अकेले एक एटम के रूप में. So their MP and BP is comparatively very low. देखिए, it has unusual property of diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass और plastics. ये इनर्ट गैसेज होती हैं रबर में, प्लास्टिक में और ग्लास में, एब्जॉर्ब होने की एबिलिटी इनमें होती है. क्वेश्चन ये किया गया है, वाई गैसेज है, नोबल गैसेज है वेरी लो बीपी, वाई? तो मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले बता दिया, बिकॉज दे आर नोबल इन नेचर, सो लिव्स इन मोनोएटॉमिक फॉर्म, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इज कंपैरेटिवली वेरी लीस्ट, दैट इज नेग्लिजिबल, सो देयर बीपी एंड एमपी इज कंपैरेटिवली वेरी लो. तो अब इस फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टी में तो बेटा खास बात आप सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी. लेकिन जीनान एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन लाइक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, और जीनान के ऑक्साइड या जीनान के फ्लोराइड या जीनान के ऑक्सी फ्लोराइड जैसे कंपाउंड बनाता है. तो जनरल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, द नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम हैव कंप्लीटली फिल्ड NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in their valence shell. They have high ionization enthalpy and more positive electron gain enthalpy. Reactivity of noble gases have been investigated occasionally ever since their discovery. तो एक बात ये पहले बता दिया गया आपको कि ये चूँकि इनर्ट होती हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, इसलिए ये कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन कुछ कंपाउंड इनके बन जाते हैं, जैसे O2PTF6. यहाँ पर आप देखिए जीनान की बात की गई है कि जीनान कुछ कंपाउंड के साथ मिलकर के कंपाउंड, कुछ एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनाता है. तो जीनान के कंपाउंड के बारे में हमने आपको बताया पहले. तो हम लोग जीनान के कंपाउंड के बारे में अगले दिन पढ़ते हैं कि जीनान कौन कौन से कंपाउंड बनाता है और कैसे बनाता है. और टेल देम आप इसे इतने की प्रॉपर्टीज को रिवाइज करिए. कोई केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें होती नहीं, क्योंकि ये इनर्ट होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीटली फिल्ड होती है. इस कारण से और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कंपैरेटिवली वेरी हाई होती है. सो दे डू नॉट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन. ओनली जीनान, ये लिख दिया गया, आप लिखा है, ओनली जीनान फॉर्म्स few compounds with highly electronegative elements like fluorine and oxygen, and such compounds will be studied at next day. तो आज आप अपना दो रहिएगा और जीनान के कंपाउंड के बारे में हम अगले दिन बताते हैं. थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन.